Please keep your mics muted until and unless you are speaking. मुझे mute करना पड़ता है, which is not a good thing, right? मुझे अच्छा नहीं लगता, I don't feel good that I have to mute your mics, right? So it's a humble request to please keep your mics muted until you are speaking something, right? Nihar, am I clear about this? Okay. ठीक है. तो who will tell me what all did we discuss yesterday? क्या डिस्कस किया था कल हमने? सर कल ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे और ट्रूथ टेबल और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. करेक्ट. और हमने ऑपरेटर्स में डिस्कस किए थे सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो कंटिन्यूइंग द टॉपिक टुडे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या जिसको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है. सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई एम प्लानिंग प्रीटी मच टुडे. एंड हाँ ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गिव मी अ मिनट. So let's start with the basic types in JavaScript. ठीक है. So by the way, Java और JavaScript में उतना ही relation है जितना car और carpet में होता है, right? Which means there is no relation between Java and JavaScript. They are entirely independent languages and they both are programming languages, obviously. ठीक है. So that's something which you need to know. When talking about JavaScript, there are various ways of writing JavaScript, right? So one is functional approach to any programming language, and the second is object oriented approach, right? We will be majorly dealing with the functional approach, although we will be touching with the object oriented approach as well. But when we talk about JavaScript and front end development or back end development, I mean anything with JavaScript, it is the functional approach which is preferred over the object oriented approach, right? We will see what are the pros and cons of both the approaches, but that comes as a later topic when we will start discussing the object oriented approach. So as of now, everything will go as the functional approach, right? And what is the meaning of these two things? ये सारा कुछ future में आएगा, so wait for that. Right now we are discussing the basics, right? So we need to focus a lot on that. हाँ प्रियम बताइए. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा बेटर है, सर जावा या फिर जावास्क्रिप्ट? इंग्लिश और हिंदी में कौन सी बेटर है? सर दोनों ही सही है सर. यू हैव योर आंसर. देखिए ये लैंग्वेजेस हैं, इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. ठीक है. जैसे कोई भी लैंग्वेज एक दूसरे से बेटर नहीं होती. नाइदर इंग्लिश इज बेटर दैन हिंदी नॉर फ्रेंच इज बेटर दैन इंग्लिश. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो वैसे ही इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ वेब. ऐसा क्यों कहा जाता है वी विल सी. बट अभी के लिए आप समझिए कि आपको वेब से रिलेटेड अगर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है एटलीस्ट टिल फ्रंट एंड, तो आप जावास्क्रिप्ट को अवॉइड नहीं कर सकते. जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, राइट? तो फॉर मेकिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट इज अ मस्ट थिंग. आप HTML CSS ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, बट जावास्क्रिप्ट इज द, तो मैंने पहले भी बताया था, इट्स द सोल. ठीक है. वो सोल है बॉडी की. इफ your skeleton is HTML, skin and flesh is CSS, so JavaScript is the soul which drives the body, right? तो ठीक है, let's get forward today with the new set of operators which are your arithmetic operators. ठीक है. तो बट उससे पहले I would like to discuss the concept of types in JavaScript. तो JavaScript में हम data types नहीं कहते हैं because JavaScript is a weakly typed language. ठीक है. Now what is the meaning of weakly typed language? कोई बताना चाहेगा मुझे what is the meaning of weakly typed language? Anybody can tell me what is the meaning of weakly typed language? बताइए प्रियम. सर आई थिंक इट्स केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वीकली टाइप लैंग्वेज. No. That's an entirely different thing. ठीक है विवेक, do you want to shed some light on it? सर ये लैंग्वेज में सर वेरिएबल कैन हैव मेनी डेटा टाइप्स असाइन्ड टू देम एंड टाइप कन्वर्सेशन आर हैंडल्ड डायनामिकली. Correct. 100%. So JavaScript, one of the reasons that JavaScript is called as a weakly typed language because इसमें variable की data types नहीं होते हैं, right? There are no data types to a variable, which means, so okay, let's start with the concept of variables. Variables को अगर I have to relate to a practical example, take the practical example of a box. ठीक है. एक carton box समझ लीजिए या एक suitcase समझ लीजिए. ठीक है. तो if you take the example, let's say we take the example of a suitcase. ठीक है. आप suitcase में clothes भी ले जा सकते हो. You can also carry food in a suitcase, right? You can, even if your suitcase is 100% liquid resistant, you can also carry some liquid items inside that as well. है ना. पानी भी भर के आप ले जा सकते हो. Just saying. ठीक है. Although पानी भरोगे तो लीकेज होगा, that's a different thing. But I mean, you can store these kind of things. So एक suitcase क्या है? A suitcase is a container. A suitcase is basically a container which can hold different types of things. Like for example, your clothes, your apparels, your food items, whatever you want, आप उसमें डाल सकते हो. Variable has the same thing. Variable भी वही होता है. Variable वो है जिसका content बदलता रहे. For example, if I talk about the number 2, is number 2 a constant or is it a variable? The answer is it is a constant. Why? Because 2 will remain 2. It will come after 1. It will come after the number 1, and it will always come before the number 3. 2 की जगह number line पे fixed है. You cannot change that, right? So that is a constant. वो क्या है? वो एक constant है, right? 100 degrees Celsius, the boiling point of water. ठीक है. 100 degrees Celsius as a temperature value, ठीक है, is a constant. It cannot change. 100 डिग्री का मतलब उतनी ही हीट रहेगी जितनी उसने 100 डिग्री अचीव करने में ली है, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ग्रीन ही रहेगा. ग्रीन, आप ब्लू को ग्रीन नहीं कहते हो. यू डोंट से दैट द स्काई इज ग्रीन. यू डोंट से दैट द ग्रास इज ब्लू, राइट? सो द कलर्स आर आल्सो फिक्स्ड इन नेचर. सो ये सब क्या है? दीज आर ऑल कांस्टेंट्स इन नेचर. वेरिएबल क्या है? व्हाट्स वेरिएबल देन? वेरिएबल है आपका टाइम. ठीक है. अभी रात के लेट्स से इट्स 8:15, 8:12, आधे घंटे बाद इट वुड बी 8:43, 42, राइट?
तो टाइम इज समथिंग विच इज चेंजिंग। तो दो तरह की हमेशा चीजें होती हैं, वन इज विच इज कांस्टेंट इन नेचर एंड अनदर इज विच इज वेरिएबल इन नेचर और विच विल वैरी विद टाइम और स्पेस, टाइम या स्पेस के हिसाब से जो वेरी करेगा, राइट। सो अगेन एग्जांपल ऑफ नंबर्स 2 3 4 ये सब क्या है, दीज आर योर कांस्टेंट्स। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आर जस्ट लाइक कंटेनर्स, कि उसके अंदर आप जो चाहे वो डाल सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स वो कंटेनर्स हैं कि उनके अंदर आप जो चाहे डाल सकते हो। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर किचन कंटेनर्स, आपके किचन में भी कंटेनर्स होंगे, राइट, यू शुड बी हैविंग कंटेनर्स। तो कभी कभी आपकी मदर्स क्या करती हैं, दे पुट मतलब कई बार उसमें किसी में वो टी डाल देंगी, किसी में शुगर डाल देंगी, सम टाइम दे में पुट ऑयल इन द सेम कंटेनर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आई मीन द सेम कंटेनर कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, इट कैन होल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज, राइट। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। तो दीज आर योर वेरिएबल्स। सो व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर प्रिसाइसली द कंटेनर्स एंड दे कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट एंड सम स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेजेस। तो मैं पाइथन की बात नहीं करूंगा, पाइथन इटसेल्फ इज अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। सो लेट्स डू अ कंपैरिजन बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा, ठीक है। जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज एंड अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज, उसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई, इफ आई टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स आप सबने देखे होंगे, यू माइट हैव सीन कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या मैं उसमें कोई लिक्विड स्टोर कर सकता हूं, कैन आई स्टोर अ लिक्विड इन इट? Yes No, or sir. no? No. No, sir. Why? Because No, there sir. will be leakage, right? There will be leakage to that. Similarly, can I store air? Can I store air inside that carton box? कर सकता हूँ मैं store. मतलब I want to just make sure कि leakage ना हो, नहीं कर सकता हूँ, because again it is not airtight, leakage तो होगा, right? Similarly, if we take the example of, let's say, अगर हम example लें kitchen containers का, can I store a cloth inside it? Probably no, the size is small, right? Kitchen containers इतने बड़े नहीं होते हैं कि उसके अंदर आप एक अपनी टी-शर्ट जीन्स रख लें. It's not possible. Simply it's not possible, right? है ना? Are we clear Yes, with sir. that? So see, you are able to see the difference. When we are talking about the containers, there is a nature of that container, कि what kind of value it can hold. ठीक है? But this is the type of containers which you see in your strongly typed languages and not weakly typed languages. That is one thing, right? You see this in a strongly typed language and not a weakly typed language. Strongly typed languages में जो containers होते हैं, they are such that कि they are made in a way कि they can only store the type of the thing which they are meant for. For example, carton boxes, वो clothes तो store करा सकते हैं, but oil नहीं store कर सकते. आपके kitchen containers, they can store things like oil, maybe sugar, maybe tea, maybe pulses, whatever, but they cannot store clothes, right? So everything is meant for something. ठीक है? Now let's take the example of a weakly typed language kind of containers. ठीक है? मान लीजिए मैंने एक ऐसा glass container बनाया, बहुत बड़ा सा मैंने glass container बनाया, which is airtight as well. एक glass container मैंने बनाया बहुत बड़ा सा, let's say 10 liters or 20 liters, जिसमें क्या है कि एयरटाइट भी है वो, दैट इज एयरटाइट एज वेल. सो नाउ दैट इज द टाइप ऑफ कंटेनर योर वीकली टाइप लैंग्वेजेस यूज. उसमें आप क्लोथ्स भी रख सकते हो बिकॉज इट हैज दैट मच ऑफ स्पेस. लिक्विड भी स्टोर करा सकते हो, इट इज एयरटाइट डेफिनेटली, और ग्लास का बना लीकेज के चांसेस ही नहीं है, राइट. एंड एयर भी स्टोर करा सकते हो, व्हाई? बिकॉज इट्स एन एयरटाइट कंटेनर, एयर भी लीक नहीं होगी, राइट. सो दीज आर द काइंड ऑफ वेरिएबल्स और द कंटेनर्स. Consider those containers as your variables, where you can store different kinds of values inside it. ठीक है, जहां पे अभी हम सामान रख रहे थे, we were keeping things inside the container. In variables, we store different kinds of values, right? Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. So the difference Yes, sir. between a weakly and a strongly typed languages, in a strongly typed language such as Java, such as C++, such as C, such as Go, ठीक है, in a strongly typed languages, the variables can only store the type of data. What is data? Data is information. The variables can only store the type of information for which they are meant for, जिसके लिए वो बने हैं. Whereas in languages like JavaScript, the container or the variables can hold any type of types, data types. किसी भी तरह का data type वो hold करा सकते हैं, right? Now let me show you an example of what is the difference between these data types. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा हल्का सा स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज से. आज भी मैं जावास्क्रिप्ट बस टच कर रहा हूं. वी विल गेट मोर इनटू जावास्क्रिप्ट मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स, बिकॉज़ मुझे अभी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्लियर करना है. ठीक है, सो एंड बाय द वे दिस सेक्शन जावास्क्रिप्ट इज माय एक्सपर्टीज. सो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर करूंगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा. दिस इज समथिंग वेयर माय रियल एक्सपर्टीज कम्स इन. ठीक है, सीएसएस एंड एचटीएमएल इज समथिंग जो कि आज की डेट में एआई से भी बहुत इजीली हो जाता है, बट जावास्क्रिप्ट एंड वेयर लॉजिक इन्वॉल्वड इज समथिंग जहां पे एक प्रोग्रामर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, राइट. ऑल्दो एआई इज डूइंग प्रोग्रामिंग एज वेल, बट आप चैट जीपीटी में जाके देखो, आई टेल यू कि आप चैट जीपीटी में जाके देखो, आधे टाइम वो गलत कोड लिखता है. ठीक है, सो यू नीड, सो अ प्रोग्रामर इज नीडेड देयर. सो देयर, दिस इज वेयर वी कम इन एज प्रोग्रामर्स. देखते हैं दैट पर्टिकुलर इवोल्यूशन ऑफ एआई जहां पे वो करेक्ट प्रोग्राम्स भी लिखने लग जाए, विल टेक सम टाइम फॉर श्योर. ठीक है, तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल of a weakly typed language. First of all, how do we declare variables in JavaScript? एक तो ये chat section बिना खोले, I should never share my screen. First of all, let me open the chat section because yes. So a variable in JavaScript is declared like, okay, let me open VS Code directly. So remember this, always remember this, any JavaScript file. अच्छा, HTML फाइल हम किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, कौन बताएगा? हाँ सर, .html. करेक्ट, .html और .htm दोनों ही वैलिड है. दोनों. Similarly for CSS we use .css. For JavaScript we will be using .js.
ठीक है. So I'll create a new file here and name that, let's say, app.js. App stands for application.js. So how do we declare variables in JavaScript? Now, there are two parts of declaring a variable in JavaScript. There are two parts in how you define a variable in JavaScript. So the first part is similarly a declaration. This is a declaration. So you use the keyword var. Var stands for variable. ठीक है. var भी बोलते हैं लोग, var भी बोलते हैं, var भी बोलते हैं, whatever you want to say. ठीक है. We are not dealing with the pronunciations here, but I call it generally var. ठीक है. तो var a या var a, whatever you want to call it. ठीक है. var a. यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. एंड हियर यहाँ पे आपके जो कमेंट्स होते हैं दे आर डन यूजिंग डबल स्लैश. ठीक है. सो डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है कि मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, आई हैव टोल्ड माय कंप्यूटर सिस्टम थ्रू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि आई एम गोइंग टू यूटिलाइज और आई एम गोइंग टू यूज अ वेरिएबल ए इन द फ्यूचर एंड प्लीज एलोकेट सम मेमोरी फॉर इट. ठीक है. इसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट कर दो. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एलोकेटिंग अ मेमोरी? अच्छा, आप लोगों को 5, अच्छा अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट आर द 5, चलो वो वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, दैट इज वेरी बेसिक. ठीक है. कंप्यूटर में चीजें स्टोर कहाँ होती हैं? बेसिकली दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. कंप्यूटर में कहाँ चीजें स्टोर होती हैं? You can speak directly, no need to raise volatile hands. and non-volatile memory. So memory. Exactly. Hard Memory. memory. Let's not go into volatile and non-volatile. ठीक है. The simple answer is memory, right? Memory में store होती है. Where does memory lie? It's on the CPU. CPU storage unit. Correct. Storage unit in simple computers जो आप use करते हो in your laptop, in your desktops, they are majorly stored along with the CPU. ठीक है. But आपसे कोई पूछेगा, आप simply answer करोगे memory. One thing more, Faizan, this is for you. Whenever some question is asked, you need to understand the nature of the question. अगर मैं पूछ रहा हूँ कि information कहाँ store होती है, data कहाँ store होता है, you have to think just about the memory part. Because volatile, non-volatile, permanent, temporary, RAM, ROM, hard disk, cache, ये सारी चीजें बाद में आती हैं. First of all, the answer is memory. Because कभी-कभी required होगा कि आप बहुत basic तरह से answer करें. And sometimes I would require you to answer in a lot of details. So you need to understand the nature of the question and then answer accordingly. I hope that is clear. Yes, I want to hear a yes rather, Fazan. Yes, sir. Absolutely, sir. And this is for everyone. I got this opportunity because of Faizan, but this is for everyone. Try to understand the nature of the questions. ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, because इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये फैक्टर. ठीक है. Whenever I go for any interview, अगर सिंपल कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, व्हाट इज फिबोनाची सीरीज, मैं उन्हें पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दूं, फिबोनाची वाज बोर्न इन दिस एंड दिस ईयर, ही इन्वेंटेड दिस एंड दिस सीरीज, एंड देन तो द इंटरव्यूअर विल बी लाइक फ्रस्ट्रेटेड, राइट? ही विल बी लाइक कि क्यों बताओ मुझे सीधे से होता क्या. सो समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी. सो प्लीज कीप इन माइंड इन द फ्यूचर एज वेल, राइट? सबके लिए है ये. Okay, sir. We have a hand raised. महेश बताइए. By mistake हो गया. कोई बात नहीं. चलिए, ठीक है. सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. यहाँ पे हम वी आर टेलिंग द कंप्यूटर सिस्टम और ये सिस्टम दैट अ वेरिएबल जिसका नाम है a हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड वी विल बी यूजिंग इट इन फ्यूचर टू स्टोर सम वैल्यूज. दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन. एंड देन नेक्स्ट मे बी आई कैन स्टोर सम वैल्यू. a equal to 10. यहाँ पे मैंने क्या किया? 10 नाम का जो नंबर है ना, the number which is called as 10, I have stored that in a. So this process where you first of all allocate some value to a variable is called as initialization. इसको हम कहते हैं initialization. Initial word initial से क्या समझ में आता है? कोई बताएगा? You can speak up openly. Hand raise करने की जरूरत नहीं है. Start. Value assign. 100%. Start मतलब जो पहली बार हुआ या which takes place at the starting. So initialization का मतलब है the first allocation of memory या the first assignment of a value. ठीक है, कि पहली बार आपने a में कोई value assign करी and that value is 10 in this case. That value is 10 in this case, right? ठीक है. So this is declaration and this is initialization, and बहुत सी languages including JavaScript provide you with the option of doing both of these things in one step itself. आप इसे directly ऐसे लिख सकते हो. So this is both declaration and initialization taking place in one line. एक ही लाइन में दोनों काम हो रहे हैं कि सबसे पहले a को डिक्लेयर भी कर दिया गया एंड देन उसमें वैल्यू 10 असाइन भी कर दी गई. एंड बिकॉज इक्वल टू is used to, this is the equal to symbol, right? Or equal symbol is used to assign a value which is 10 in this case. कुछ भी हो सकती थी, it could have been let's say Faizan as well. ठीक है, ये भी हो सकती थी, right? F capital as its name. ठीक है, तो as it can be any value which is getting assigned to a. और ये assign कर कौन रहा है? ये equal variable, right? Sorry, not variable, this equal to symbol. ये equal to symbol assign कर रहा है. ठीक है, और क्या कर रहा है? Assign कर रहा है. It is assigning a value to a. It is assigning a value to the variable a. That is why this equal to is also called as your assignment operator. Called as assignment operator. इसका मतलब कुछ नहीं है. This is simply, अगर आपसे कोई पूछता है कि what is an assignment operator, तो equal to is called as an assignment operator. Why? Because it is used to assign a value to some variable. अब जैसा आपने देखा कि यही a has the power, this same a has the power to store the variable 10, and it has the power to store the name of Faizan as well, right? क्या मतलब हुआ? अलग अलग तरह की वैल्यूज हैं. Why these are different kind of values? Now let's get into that. Now the next topic is which I want to discuss here.
अगर आपको मल्टी लाइन लिखने हैं, ये बाय द वे सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मतलब जब आपका कमेंट एक सिंगल लाइन में आ जाए तो आप इस तरह से यूज करेंगे, which is nothing but डबल स्लैश. बट अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखने हैं लाइक दिस, तो इट विल बी द सेम एज CSS, which is स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश. इसके बीच में यू विल व्हाटएवर यू विल बी राइटिंग आर कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट्स. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड दीज आर योर मल्टी लाइन कमेंट्स. नाउ ठीक है, लेट्स डिस्कस टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. सर हाँ जी. मैंने सुना है कि बोलते हैं, बहुत लोग अक्सर डेवलपर बोलते हैं कि आई डिफाइन दैट, आई डिफाइन दिस. उसका मतलब क्या है? ये बोथ का डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन वी कॉल्ड एज डेफिनेशन. हाँ, कह सकते हो. वैसे सच बताऊं तो डिफाइन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. आप जितनी वेबसाइट्स विजिट करोगे ना, उतनी आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी कि हाउ डू यू डिफाइन अ वेरिएबल. ठीक है, तो अगर जनरली बात करें यानी जनरल टर्म्स में, तो हम जनरली डिक्लेरेशन को ही डेफिनेशन बोलते हैं, यानी सिर्फ इतना पार्ट. ठीक है, उसके बाद दैट इज स्टिल इनिशियलाइजेशन. बट जब हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे मैं भी बात करता हूँ कि डिफाइन दिस वेरिएबल, ठीक है, तो डेफिनेशन कैन बी बोथ योर डिक्लेरेशन, इट कैन बी बोथ डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन. तो वो किस तरह से या किस सेंस में यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से वो उसका मीनिंग जो है वो बदलता रहता है. ओके सर. ठीक है, next we are discussing types in JavaScript and I will call it value types in JavaScript and not data types in JavaScript because JavaScript में data types defined ही नहीं है. ठीक है, unlike lot of strongly typed languages like Java, C++, C, Golang, maybe I guess आपकी वो भी क्या नाम है, Ruby is a weakly typed language. ठीक है, तो but in JavaScript there are no data type defined but there are value types कि जो आप value store करना चाह रहे हो, right, the kind of value which you want to store, right, that has types in JavaScript and hence I also call them as value types in JavaScript, right? Or you can simply call them as types. Although W3 schools में वो data types ही बोलते हैं, but I don't particularly like that term. ठीक है, और मतलब इस पे बहुत ज्यादा क्या बोलूंगा मैं, डिबेट भी है. इसका माइक खुला है भाई. गौरव, प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड until you are speaking. Right? ठीक है, तो या वेयर वाज आई, वैल्यू टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. तो इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी है कि शुड वी कॉल इट डेटा टाइप और शुड वी कॉल इट वैल्यू टाइप. आई पर्सनली प्रेफर वैल्यू टाइप बिकॉज डेटा टाइप वेरिएबल का होता है और वेरिएबल का कोई टाइप होता ही नहीं है जावास्क्रिप्ट में. सो दैट इज वेरी मच डिबेटेबल, बट आई वुड लाइक यू आल्सो टू कॉल इट आइदर टाइप और वैल्यू टाइप. डेटा टाइप तो नहीं होता है एटलीस्ट. ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी वांट टू सी इज कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देम डाउन, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं सारे. फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकंड इज नंबर, third is begint, although begint को पढ़ाना उतना जरूरी नहीं है, but ठीक है, begint is something which you rarely use. Boolean, undefined, null, 7 symbol and 8 object. So these are the basic value types in JavaScript. यहाँ से start करते हैं. String. So string is nothing but a character or a group of characters. For example, यहाँ पे मैंने name लिखा हुआ है फैजान, right? So it is what? It is a group of characters. Now, कितने लोगों को नहीं पता है? Please raise your hands honestly. No one is going to judge you for that. ठीक है? कि what is a character? कितने लोगों को नहीं पता है character क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड्स बिकॉज अभी कंफ्यूजन रह गया तो आप लास्ट तक सफर करोगे इस चीज पे. ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड्स वेरी ऑनेस्टली. कोई बात नहीं पता, आई विल एक्सप्लेन, मैं हूं ही उसी लेना. ठीक है, आपको अपने कीबोर्ड पे जितनी भी अभी कीज दिख रही है ना, 1 2 3 4, नॉट F1 F2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फंक्शन कीज की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फंक्शन कीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एस्केप कीज. क्या हो रहा है ये? ओके, हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आप अभी अपने कीबोर्ड पे जितनी भी कीज लिख पा रहे हो जिनको आप टाइप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल Q WERTY UIOP 1 2 3 4 टिल्डा बैकस्लैश. ठीक है, ये जितने भी हैं दीज आर ऑल कैरेक्टर्स. ये सब क्या कैरेक्टर है? तो Y इज अ सिंगल कैरेक्टर, 1 इज अ कैरेक्टर, 2 इज अ कैरेक्टर. ठीक है, स्पेस इज अ कैरेक्टर, 1 स्पेस इज 1 कैरेक्टर. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इज अ कैरेक्टर, टिल्डा इज अ कैरेक्टर. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा इज अ कैरेक्टर. ये सब क्या है? इनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, वी कॉल देम एज कैरेक्टर्स. ठीक है, द टर्म इज कैरेक्टर्स. ठीक है, आई विल राइट इट इन द चैट. Characters. And how do we define a string? So a single character or a group of characters is called as string. So a string is nothing but a character or a group of characters. जैसे फैजान, फैजान is made up of 6 different characters, which is FAIZAN, right? These are 6 different characters. When they come together, they form the word fazan, and fazan is a string. ठीक है? Similarly, Mahesh is a string. Similarly, Delhi 6 is a string. Similarly, your phone number 9161213456, whatever it is a string. Right? These are what? These are a group of character. और character कुछ भी हो सकते हैं. Characters can be anything which can be typed from your कीबोर्ड. बल्कि कैरेक्टर, कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके कीबोर्ड पे पाए भी नहीं जाते हैं. दे आर इवन नॉट फाउंड ऑन योर कीबोर्ड. आपके कीबोर्ड पे जितनी कीज हैं उससे ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में. बट मोर ऑन दैट लेटर. अभी हमारा पर्पस वो नहीं है जानना कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ कैरेक्टर. ठीक है, ओके. सो अ कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग. सो ए भी एक स्ट्रिंग है, ए बी भी एक स्ट्रिंग है. ठीक है, सो अ सिंगल कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग. एंड जब इस स्ट्रिंग के अंदर एक भी कैरेक्टर नहीं है, देन आल्सो इट इज अ स्ट्रिंग. It is just an empty string. इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as empty string. Empty क्यों बोल रहे हैं? Because string के अंदर कुछ भी नहीं है. We have 0 characters. So how do we define a string? A string is a group of 0 or more characters.
When it is 0, it is called an empty string. And strings are always written inside, remember this, strings are always written inside either single inverted commas or double inverted commas. इसके अंदर ही आप अपनी string लिखेंगे. Strings ऐसे नहीं लिखी जाती हैं. No, this is invalid. ये invalid है. ठीक है? It has also always be written inside either double inverted commas or single inverted commas. Right? So this was all about your string. Number आप जानते ही हो. Any form of number, be it a negative number, be it a positive number, be it a decimal number, be it 0, be it anything. ठीक है? कोई भी चीज वो क्या होती है? नंबर होती है. ठीक है? For example, the number 25. This is what? This is not written inside. See, इसमें मैं लिख देता हूँ. Strings are written inside quotes. Inside quotes. It can be single, can be double. Number is not written inside a quote. Number हम quotes के अंदर नहीं लिखते हैं. And these are simple mathematical numbers. These are simple mathematical numbers. ठीक है? कुछ बताने जैसा है नहीं. 25 भी एक नंबर है. Wait a second. Minus 25 is also a number. 25.3 is also a number. 25.309 is also a number. Minus 25.309 is also a number. Right? So any mathematical number comes under the category of number in JavaScript. हाँ बताइए. सर मैंने बोला कि आपने बोला स्ट्रिंग जो है ना 1 2 3 4 और जो भी कीवर्ड में नंबर है वो सारा कैरेक्टर में आता है. तो वेरिएबल का नंबर मतलब वेरिएबल क्या होगा सर? वेरिएबल, गुड क्वेश्चन. ठीक है. सो इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि वेरिएबल है आपका a. ठीक है? वेरिएबल है a. वेरिएबल है a का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का नाम है a. ठीक है? वेरिएबल का नाम है a और ये वैल्यू आप इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हो. मतलब ये वैल्यू 25.309 अब वैल्यू बन गई है वेरिएबल a की. समझ में आ रही बात? जी जी सर. दैट मीन कहने का मतलब वेरिएबल भी एक स्ट्रिंग ही है, लेकिन वेरिएबल देने के बाद वो नंबर काउंट करता है. नहीं, वेरिएबल एक स्ट्रिंग नहीं है. वेरिएबल इज नॉट अ स्ट्रिंग. वेरिएबल एक नाम है. यहाँ पे a की जगह पे मैं नंदू भी लिख सकता हूँ. वेरिएबल नंदू इक्वल टू 25.309. नंदू में स्टोर हो गई वैल्यू 25.309. वेरिएबल एक कंटेनर है जिसका कुछ नाम होगा. बिकॉज ठीक है, लेट्स से आप में से कितने लोगों ने कभी शिफ्टिंग करी है एक घर से दूसरे घर? शिफ्टिंग करी है कभी? करी होगी. काफी लोगों ने करी होगी. यस सर. तो अगर आपने कभी पैकर्स एंड मूवर्स या ऐसी सर्विस यूज किया, नहीं भी करी है यूज, खुद से भी करी है शिफ्ट, ठीक है, तो क्या होता है जनरली आप जो बॉक्सेस होते हैं ना, कार्टन्स, उनके ऊपर एक नंबर डाल देते हो या उनके ऊपर लिख देते हो कि उनके अंदर क्या है. राइट? ताकि व्हेन यू अनपैक योर थिंग्स, जब आप अनपैक करो अपनी नई लोकेशन या अपने नए घर में जाके, यू नो कि किस चीज के अंदर क्या निकलेगा. है ना? ऐसे नंबर्स डाल देते हैं. तो वो क्यों डाले जाते हैं? तो रिकॉग्नाइज कि उस कार्टन के अंदर क्या कंटेंट है. तो यही सेम काम यहाँ पे नंदू या ए नाम का वेरिएबल कर रहा है. कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है? कैसे रेफर करोगे आप इस वैल्यू को बाद में जाके? इस वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट कराना है स्क्रीन पे या कुछ भी कराना है, तो इस वैल्यू को आप रेफर कैसे करोगे अगर इसका कोई नाम ही नहीं होगा? तो दिस ए इज द नेम ऑफ दैट कंटेनर जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है. आई बात समझ में? तो सर इसका मतलब हो गया ना कि वेरिएबल जब मैंने लिया तो मैं कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ उसमें, मतलब ABCD भी डालूंगा तो वो भी वैल्यू काउंट करेगा. फिर से बोलिए. मैं बोला सर जब मैं वेरिएबल असाइन कर लूंगा कोई भी नाम से और उसमें अगर ABCD अगर मैं मतलब कीवर्ड का जो भी वर्ड डालूंगा तो वो भी वेरिएबल काउंट करेगा वो. करेक्ट. नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर मैं देखिए इस लाइन का अगर मैं आपको सिंपल मैं कहना चाहता हूँ ना सर कि जैसे मैंने वेरिएबल A नाम से कोई असाइन किया, ठीक है? हाँ ठीक है. क्या और असाइन करना उससे चाहिए? मैंने इनपुट डाला A, मतलब उसमें डाला A में XYZ कुछ भी डाला मैं, मतलब कैरेक्टर नंबर डाला AXYZ. ठीक है. तो वो जो XYZ डाला मैं तो वो क्या वेरिएबल में काउंट करेगा या फिर कैरेक्टर ही कहलाएगा वो? देखिए XYZ एक स्ट्रिंग है. क्या है? स्ट्रिंग है जो स्टोर हो रही है वेरिएबल A में. देखिए और डिटेल में बताता हूँ. देखिए होता क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, सिंपल तरीके से बताता हूँ. वैसे ये प्रोसेस इतना सिंपल है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ. आपके कंप्यूटर में क्या होता है कि ये एक्चुअल जो होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है. क्या करता है जब भी आप लिखते हो वेरिएबल A इक्वल टू लेट्स से XYZ, तो यहाँ पे ना क्या होता है, मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर में. मेमोरी होती है जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. आपने क्या लिखा? XYZ. ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे जरा XYZ. ये यहाँ स्टोर हुआ. इसकी कुछ मेमोरी लोकेशन होगी. मान लीजिए इसकी मेमोरी लोकेशन है, जनरली नंबर से रिप्रेजेंटेड होती है वो लोकेशन. ठीक है, मान लीजिए इसकी लोकेशन है 231. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ. ठीक है, अब आप हर बार 231 को रेफर नहीं कर सकते हो. ना रेफर करना आसान है. ये हर बार कौन याद रखेगा? मान लीजिए अभी तो एक ही वेरिएबल बना है, जबकि एक्चुअल प्रोग्रामिंग में कई बार 50 वेरिएबल्स होते हैं. तो क्या आप ये नंबर याद रखते घूमोगे? नहीं. उस केस में इस तरह से इन नामों को याद रखना ज्यादा आसान होता है. तो होता क्या है, जब XYZ मैंने स्टोर कराया और मैंने स्टोर कराया A में, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट होगा A. सबसे पहले तो XYZ कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर कर दिया गया. ये उसका रेफरेंस है. रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस है कि XYZ नाम की वैल्यू स्टोर्ड कहां पे है. तो कहां पे स्टोर्ड है? 231 नंबर पे स्टोर्ड है. जस्ट एन एग्जांपल. इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होता है. ठीक है, और आपने लिखा ये स्टोर करो वेरिएबल A में, तो इसका कुछ मतलब नहीं है. इसका मतलब सिंपली इतना है कि A आपका इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा. समझे? सो इट इज जस्ट एज सिंपल एज दिस कि A आपका इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा और इस एड्रेस में क्या वैल्यू प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है XYZ. ये होती है रियल फंक्शनिंग. हाँ तो सर एक मिनट, तो फिर कैरेक्टर और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? कैरेक्टर और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? देखिए वेरिएबल एक सिर्फ नाम है, या वेरिएबल आप कह लीजिए सिर्फ एक नाम है या एक मेमोरी लोकेशन है. ठीक है, कि कहां पे वो वैल्यू स्टोर्ड है और वैल्यू किस टाइप की है. ठीक है, वैल्यू किस टाइप की है वो आपका एक क्या बोलते हैं, वो आपका कैरेक्टर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
है ना? ये मैं मान रहा हूँ, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना वो मैं बताता हूँ। डेफिनेटली जो वेरिएबल का नाम है वो भी एक कैरेक्टर ही है इस केस में, ठीक है, वो एक कैरेक्टर है, पर वो उस कंटेनर का नाम है जिसमें हमें वो वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, ये खुद कोई वैल्यू नहीं है, ए कोई वैल्यू नहीं है ना, ए कोई वैल्यू नहीं है, एक्स वाई जेड वो वैल्यू है जो कि ए में स्टोर्ड है। समझ पा रहे हैं आप बात को? जी जी जी। किसी के कोई डाउट्स हैं? किसके डाउट्स हैं यार? एक तो ये बहुत मुसीबत है, ये जो ऊपर वाली चीज है ना ये हटती नहीं है इतनी आसानी से। एनीवेज, हाँ साहिल बताइए। सर मल्टीपल स्ट्रिंग यू ऐड कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स किस तरह से? सर, कॉमा देकर। हाँ, पर वो मल्टीपल नहीं होगी, वो स्ट्रिंग एक ही होगी। दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग xyz 1 2 3, ये एक सिंगल सर स्ट्रिंग। एक्स वाई जेड के बाद सर आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा उसके लिए। तो मतलब एक वेरिएबल में केवल एक ही स्ट्रिंग एक वेरिएबल में आप एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एज अ फॉर पर्टिकुलर रूल, और एक वैल्यू या तो एक स्ट्रिंग होगी या नंबर होगा या बिग इंट होगा या बूलियन होगा या अनडिफाइंड होगा, व्हाटएवर इट इज। यस। ठीक है, और कोई डाउट्स किसी के? सलमान आपका भी कोई डाउट था? नो सर। ठीक, तो हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग, हमने डिस्कस किया नंबर। नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्कस बिग इंट, बट बिग इंट से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं बूलियन, ठीक है। बिग इंट से पहले डिस्कस करते हैं बूलियन। कल हमने मेजरली बात की थी बिट्स के बारे में। बिट्स दो होती हैं, 1 और 0, वेयर 1 डिनोट्स द पासिंग ऑफ करंट एंड 0 डिनोट्स दैट नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था 1 ऑल्सो डिनोट्स द ट्रू स्टेट। 1 क्या डिनोट करता है? ट्रू स्टेट को, और 0 डिनोट करता है फॉल्स स्टेट को। बूलियन भी दो ही होते हैं। बूलियन अनलाइक योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी xyz, इट कैन बी माय नेम, इट कैन बी योर नेम, इट कैन बी अ फोन नंबर, इट कैन बी अ पिन कोड, मतलब स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग, राइट। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है, xyz कुछ भी, along with a combination of numbers, slashes, question mark, कुछ भी, any group of characters with no restriction on it can be called as a string, ठीक है। so ये मेरी string है, but unlike a string, boolean data type is used to indicate true or false values, मतलब इसकी values या तो false होगी या true होगी, ठीक है। इसकी values क्या होंगी? या तो false होंगी या true होंगी, ठीक है। अब ये किस तरह से यूज किया जाता है? ये किस तरह से यूज किया जाता है कि अगर आपको कोई कंडीशन लिखनी है कि मान लीजिए if weather is rainy today, then I will go to then I will not go to the market। अगर इस तरह की कोई चीज लिखनी है तो इस तरह से आप लिखते हैं उसको। if weather, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह से लिखते नहीं है, I'm just showing you an example। if weather is rainy, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। ये क्या है ये मैं बाद में आऊंगा, इसको मैं अभी सिंपल इंग्लिश में लिख देता हूं। if weather is rainy is true, is true का क्या मतलब है? it is happening one state that the current is flowing, है ना। तो बूलियन की हमारी कितनी वैल्यूज होती हैं? दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, या फॉल्स और ट्रू, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। सो ये हो गए हमारे बूलियन डेटा टाइप्स। आल्सो बूलियन डेटा टाइप्स को अगर आपको स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल यू कैन स्टोर इट डायरेक्टली लाइक दिस, फॉल्स और ट्रू विदाउट कोट्स, क्योंकि अगर इसी चीज को आपने कोट्स में लिख दिया तो ये क्या बन गया बताइए? सर कैरेक्टर String. स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग, नॉट कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये बन गया string। तो बूलियंस आर ऑलवेज रिटन आउटसाइड योर कोट्स। बूलियन में आप कभी भी कोट्स का यूज नहीं करेंगे। बूलियन, और ये हो सिर्फ दो ही वैल्यू सकती हैं, आइदर फॉल्स और ट्रू, कुछ नहीं इसके अलावा, राइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज अनडिफाइंड। नाम से ही क्लियर होगा कि अभी तक डिफाइंड ही नहीं है कि ये किस टाइप की वैल्यू है ना। अभी तक डिफाइंड ही नहीं है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, राइट। तो इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। वेरिएबल सी, क्या मैंने सी में बताया कि कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? हैव आई टोल्ड यू? नो सर नो, नॉट येट, अभी तक तो कम से कम नहीं बताया। तो इस स्टेज पे जब मैंने बताया ही नहीं, बनाया नॉट टोल्ड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी इज अनडिफाइंड। सी क्या है? अनडिफाइंड। तो इस तरह के वेरिएबल्स जिनका टाइप कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ या जिनका टाइप कभी इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, दे आर कॉल्ड एज अनडिफाइंड वेरिएबल्स। तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो विदाउट कोट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, इनका मतलब सेम है, इनका मतलब सेम है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब दे आर नॉट डिफाइंड येट, अभी तक पता ही नहीं है ये किस टाइप के हैं। तो जिनका कोई टाइप डिफाइंड ना हो, whose type are not defined, they are called as undefined data types। their types या their type is not defined, ठीक है। ये है अनडिफाइंड, नल। अक्सर लोगों को पता है नल और अनडिफाइंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज वो ध्यान से समझते नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो देखिए नल क्या होता है? नल का मतलब होता है एम्प्टी। नल का मतलब पता है क्या होता है? एम्प्टी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूं आपको। अब ये सी अनडिफाइंड है, क्या अब ये सी अनडिफाइंड है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इसे वैल्यू 12 दे दी। सी दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ योर वेरिएबल्स कि आप एक वेरिएबल को कितनी भी वैल्यूज दे सकते हैं। अभी यहाँ सी 12 है, इसके बाद मैं सी को फैजान भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। कि अ वेरिएबल जैसा नाम ही है, वेरिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, ठीक है। वेरिएबल कहां से आता है? कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, और वेरी का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहे, व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग या व्हिच कैन चेंज इटसेल्फ, है ना। कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, वेरी से मिलकर वेरी से बनता है वेरिएबल, ठीक है, कि जो खुद को बदलने की क्षमता रखता हो, व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज इटसेल्फ, right? That is called a variable. So see, here it was undefined, here it has become 12, here it is becoming Faizan.
ठीक है, but let me tell you what is the meaning of null. So whenever you assign it null, so null state or null type denotes nothing but it denotes emptiness. ये क्या करता है, ये emptiness denote करता है कि अब इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, ठीक है. It defines emptiness and that no value is currently stored in the variable. ये emptiness डिफाइन करता है कि अब ये वेरिएबल खाली हो चुका है और इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो देखिए एक डिफरेंस है नल और अनडिफाइंड के बीच में. अनडिफाइंड क्या है कि अभी तक पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है या वैल्यू का टाइप क्या है, क्या वो एक स्ट्रिंग है, क्या वो एक नंबर है, क्या वो एक बूलियन है या वो कुछ और है, पता ही नहीं है अभी तक. वी डोंट नो दैट येट, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू नल, नल का मतलब अनडिफाइंड नहीं है. ऑल्दो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, दे लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बट नल का मतलब है कि क्या पता कभी कोई वैल्यू रही हो पर एट दिस स्टेट दिस वेरिएबल इज एम्प्टी. इस समय ये वेरिएबल एम्प्टी है. ऑन लाइन नंबर 6 दिस वेरिएबल बिकम्स एम्प्टी, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है. तो इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट एन एम्प्टीनेस. ये एक खालीपन दिखाता है वेरिएबल का. Whereas undefined, this denotes कि that this variable was never allotted a value. Its type is not defined yet. इसका type अभी तक defined ही नहीं है. It is not defined whereas this is empty. So that is the major difference between your null and undefined. Next आता है symbol. ये हम discuss करेंगे advanced parts of JavaScript में because ये उतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है. ठीक है, so I will leave this for now. Last is object. ठीक है, तो object की बात करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये रिवाइज कर लो जितने भी मैंने अभी टाइप्स बताए आपको. And if you have any questions just ask them. मैं 5 मिनट में आता हूँ. And just give me a moment. मैं पानी पी के आता हूँ 5 मिनट में. Right? So till then you just have a look. और उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट और बिगिन के बारे में बताता हूँ. कर लिया सबने, रिवाइज कर लिया? कोई क्वेश्चंस एनीवन? हाँ तुषार. सर जब हम वेरिएबल में नल को असाइन करते हैं, Correct. तो वेरिएबल में जब हम नल असाइन करते हैं तो उसमें वो मेमोरी में कोई टेक्स प्लेस करता है क्या सर वो कंटेनर में? वी विल गेट इनटू दैट, बट अभी मैं मेमोरी वाला पार्ट टच नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज द थिंग इज कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ पे, इसलिए मैं अभी उसको जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ उस पार्ट को. ओके, मतलब सर जैसे हम अगर कंटेनर डालते हैं, मतलब एक में अनडिफाइंड यूज करते हैं और एक में नल यूज करते हैं, हम्म. तो अनडिफाइंड वाला और नल सर इनिशियल स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेम तरीके से ही एक्ट कर रहे हैं? आप कह सकते हो, बट क्या बिहाइंड द सीन्स दोनों सेम है, क्वेश्चन उस पे आता है. तो नल में बेसिकली जितनी मुझे नॉलेज है कि नल में मेमोरी एलोकेशन होता है, whereas सर undefined. हाँ जी, लेकिन सर नल तो एक स्टेट है ना सर, वो स्टेट डिफाइन करते हैं ना, नल उसको एक मेमोरी से स्टेट है. हाँ एग्जैक्टली, तो तभी मैं कह रहा हूँ मैं मेमोरी में जा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मेमोरी जो है, मेमोरी फैक्टर अगर मैं मेमोरी को इंट्रोड्यूस करूंगा वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए आई एम नॉट टचिंग दैट पार्ट अभी. लेकिन ये सर स्टेट है, खाली ये एब्सेंस को रिप्रेजेंट करेगा ना, वो है कि Correct. नहीं है, उससे फिर Correct. मेमोरी से क्या फायदा उसका, कुछ वो फर्क ही नहीं है उसका कुछ मेमोरी से. पर कई डिसीजन फैजान ऐसे लिए जाते हैं वाइल डिजाइनिंग, बिकॉज ये डिजाइन डिसीजन है कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से डिजाइन की गई है. ठीक है, कई डिसीजन ऐसे इस रीजन से लिए जाते हैं जो आपको नहीं पता है अभी. ठीक है, तो आप अभी एक तरह से सोच रहे हो कि अगर सिर्फ एम्प्टीनेस दिखानी है तो मेमोरी का क्या फायदा, बट मे बी उसको किसी और तरह से भी सोचा गया हो. राइट. हाँ ओके सर. Sir, what is the use of undefined? व्हाट इज द यूज ऑफ अनडिफाइंड? तुषार आंसर करिए.
अनडिफाइंड में हम जो है बेसिकली वहाँ पे वैल्यू नहीं असाइन करते हैं, हम वहाँ पे वेरिएबल देते हैं बट उसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन होती है। यूज क्या है इसका मतलब? दो चीजें, एक कभी कभी आपको शो करना पड़ता है कि इस, एक तो हो गया एम्प्टीनेस कि ये वेरिएबल क्या है कि अभी कोई वैल्यू नहीं होल्ड करता। कभी कभी ऐसा होगा, अभी इसका यूज आपको बेटर समझ में आएगा जब आप रियल टाइम प्रोग्राम्स लिखेंगे, कि कुछ एक टाइप ऑफ डेटा आएगा आपका बैकएंड से और वो होगा अनडिफाइंड। मतलब कभी तो डेटा आएगा, मे बी इंटरनेट अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, डेटा आ गया और आपने उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। कभी कभी ड्यू टू एरर्स डेटा नहीं आ पाता, तो उस केस में आपका वो टाइप अनडिफाइंड हो जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। इस तरह से जब आप रियल टाइम प्रोग्रामिंग करेंगे तो अनडिफाइंड के बहुत यूजेस होते हैं। मैं डेली बेसिस पे कम से कम 10 बार अनडिफाइंड को एक दिन में यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप रियल टाइम प्रोग्रामिंग करेंगे। बट वन यूज केस यू कैन कंसीडर कि आपने रिक्वेस्ट भेजी और आपने उसका रिस्पॉन्स डेटा स्टोर कराया वेरिएबल में, डेटा आया है, वेल एंड गुड। डेटा नहीं आया ड्यू टू सम एरर और समथिंग, तो वो बन जाता है अनडिफाइंड। ओके सर, ओके। एंड सर आपने सही बोला कि किया जा सकता है, बट अनडिफाइंड भी तो स्पेशल वैल्यूज को भी कल आप बाद में से क्लियर कर देंगे सर। तुषार ने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं बट आऊंगा इस चीज पे, बट अभी प्रोबेबली एक महीने नहीं आऊंगा। रीजन है कि देखिए, आप हो या तुषार हो या और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स जानते हैं, कुछ लोग हैं जिनको अभी देखिए कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग्स पे भी इश्यूज होंगे। ठीक है, आज मैंने इतना बताया, फिर भी होंगे। तो अभी पहले मुझे बहुत कोर बेसिक क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में चला गया ना, मेमोरी और इन सब चीजों में, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टार्टिंग में, और उन लोगों के लिए वो चीज ना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में लीड कर देगी ना। तो इसलिए मैं भी उन चीज उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जाने को तो मैं इतनी डिटेल में भी आपको बता सकता हूँ कि गार्बेज कलेक्शन होता है, उसमें कई बार आपके अनडिफाइंड वेरिएबल्स कलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें भी बहुत सारी लेकिन processes हैं। ओके सर, But- सो मैं इतना ध्यान में रख के चलूँ कि नल अनडिफाइंड अपन इनको एलोकेट करा सकते हैं। यस यस, दैट्स द थिंग कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है। ठीक है, कि किस स्टेज पे, वो अगेन एक अपने आप में एक पूरा डिफरेंट टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, तो वो अपने आप में एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है। अगर वो मतलब मैं बेसिक्स टच करूंगा उसके, बट अगर मैं उसको पढ़ाने पे आ जाऊं तो वो 2 सेमेस्टर का टॉपिक होता है जनरली कॉलेज में, मतलब 1 साल पढ़ाया जाता है वो। तो कि एक लैंग्वेज या एक कंपाइलर काम कैसे करता है, किस स्टेज पे वैल्यू एलोकेशन होता है, कैसे वेरिएबल वैल्यू को रेफर करता है, कैसे मेमोरी असाइनमेंट होती है। तो शायद आप पास आउट हो ना, तो आपको आई गेस आप अच्छा ईसी से हो, बट आपने भी शायद बेसिक्स ऑफ कंपाइलर शायद पढ़ा हो, है ना, ईसी में। यस सर, और कोआ मोस्टली आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। यस सर, मिप्स उसमें है और असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर्स की जो है Exactly. कंट्रोलिंग उसमें। या तो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो अपने आप में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो इट वुड लाइक लिटरली टेक मी क्वाइट सम टाइम। तो उतना डिटेल तो नहीं, बट हाँ बेसिक्स की एक वेरिएबल जैसे नल है, अनडिफाइंड है, क्या वो वैल्यू सॉरी मेमोरी एलोकेट होती है या नहीं, उतना मैं जरूर डिस्कस करूंगा वंस अदर पीपल आर आल्सो कंफर्टेबल विद दीस थिंग्स। बट अभी आई डोंट फील दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दोस ओके थिंग्स। सर, बट सर अभी इनिशियल पॉइंट में अगर मैं बोलूँ तो अनडिफाइंड और नल, जब तक हमने नल मतलब वेरिएबल में अनडिफाइंड डाला है और वेरिएबल में नल डाला है, हमने अनडिफाइंड में अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो वो इनिशियल स्टेट में सर दोनों सेम तरह की एक्ट करेंगे? सोच के देखिए, आपको क्या लग रहा है, मतलब सर मुझे तो सेम ही लग रहा है एक तरीके से, सो क्योंकि देखिए। सर वो भी खाली है। हाँ करेक्ट, सो मैं बताता हूँ, चलिए आप क्योंकि हम इस टॉपिक में जा ही रहे हैं तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अनडिफाइंड में क्या होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल इवेंट डिक्लेयर भी करते हो, आपने इवेंट डिक्लेयर भी कर दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो तुरंत के तुरंत डिक्लेरेशन किया है पर असाइनमेंट नहीं किया है, मतलब इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, वो तुरंत के तुरंत एक मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, तुरंत मेमोरी एलोकेट होती है, अनडिफाइंड में भी मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, बिकॉज लेटर आपको उसे वैल्यू तो देनी ही है, तो क्या जब आप वैल्यू दोगे तो क्या वो फिर से कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करेगा कि इतनी मेमोरी छोड़ो और फिर इतनी मेमोरी एलोकेशन होगी? नहीं, तो तुरंत एक मेमोरी तो लोकेट होगी, एलोकेट होगी ही होगी। कितनी होगी दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, बट तुरंत एक मतलब क्या बोलते हैं, एक वैल्यू एलोकेट होती है। तो अगर आप उस तरह से कंपेयर करें बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड मेमोरी एलोकेशन के बिहाफ पे, तो यस द आंसर इज ट्रू कि दोनों में ही मेमोरी एलोकेशन होता है, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि मेमोरी तो एलोकेटेड है, बट अनडिफाइंड जहां पे कहता है कि अभी तक कुछ नहीं आया, नल कहता है कि बेसिकली हो सकता है पहले कुछ रहा हो बट अभी कुछ नहीं है। राइट, तो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, बट हाँ इफ यू टॉक अबाउट द मेमोरी एलोकेशन पर्सपेक्टिव, दोनों में ही मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके सर सर, ये तो सच में मैंने इतना एक्सप्लोर किया था कि मैंने देखा नहीं था ऐसा होता है। हाँ जी। डेफिनेटली। कुछ लोग होंगे जिनको नहीं अभी ये डिस्कशन समझ में आया होगा, फोक्स प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज देखिए ये चीजें ऐसी हैं जो कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स होती हैं। जब आप बीटेक करते हो जनरली विद कंप्यूटर साइंस और आईटी, तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं पूरे पूरे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कोआ बोलते हैं जनरली उसको, एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड बेसिकली आपका ये कंपाइलर डिजाइन। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत कोर होते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, ये बताते हैं कि एक वेरिएबल किस तरह से असाइन होता है। जब आप ये लिख रहे हो var इक्वल टू 3, तो उस केस में किस किस तरह से असाइनमेंट हो रहा है, किस स्टेज पे क्या हो रहा है। जब आपने var लिखा तब क्या हुआ, a लिखा तो क्या हुआ, इक्वल टू 3 लिखा तो क्या हुआ, कौन किसको कॉल करेगा मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और ये पूरे पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, आपको उतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिक्स हैं हम उस पे आएंगे। ठीक है, वंस यू आर कंफर्टेबल विद कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और ये चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको लेके परेशान मत हो, सम पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दीस टर्म्स, उनके डाउट्स क्लियर करने में आई एम मोर देन ओपन, बट बाकी लोग प्लीज डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ठीक है, एनी डाउट्स? हाँ संतोष बताइए। सर ट्रू ऑफर सर वो सर कैरेक्टर डिफाइन करते हैं सर, की बोलिए।
ट्रू और फॉल्स, सर बुलियन डिपेंड करता है कैरेक्टर सर। ट्रू और फॉल्स, ये आपके बूलियन टाइप्स हैं, ये कैरेक्टर्स नहीं है, दीज आर नॉट कैरेक्टर्स, दीज आर नॉट स्ट्रिंग्स, ये बूलियन है ना। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप पढ़ते हैं अपना हम लोग, विच इज बिगेंट। तो बिगेंट क्या है? बिगेंट इज अगेन समथिंग जो मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज अगेन समथिंग जो कि फिर से मुझे इसको आपके कंप्यूटर साइंस बेसिक्स में ले जाना होगा, बट आई ट्राई टू गिव यू अ पिक्चर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेंट एंड नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या होता है? नंबर इज यूज्ड टू स्टोर मैथमेटिकल नंबर्स। ठीक है, अगर आपको कभी भी मैथमेटिकल नंबर स्टोर कराने हैं तो उसके लिए हम नंबर टाइप का यूज करते हैं। आज मेरा गला बहुत सूख रहा है, डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो नंबर स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में हम क्या करते हैं? नंबर स्टोर कराते हैं। बिगेंट में भी अगर मैं आपसे कहूं नंबर ही स्टोर कराते हैं तो क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स टू माइंड इज कि फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेंट? ठीक है, तो आप समझिए इसको। हाँ, तो बिगेंट में जनरली हम वो नंबर्स स्टोर कराते हैं जो इतने बड़े हैं कि वो नंबर डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ जावा से। ठीक है, तो शेयर तो है ही स्क्रीन मेरी, नाइस। देखिए, अगर मैंने कोई यहाँ पे एक वो लिखा, क्या लिखा? एक बाइनरी नंबर लिखा। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, ठीक है, तो मेमोरी का जो स्पेस है ना वो बिट्स में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? बिट्स में, बिकॉज मैंने आपको बोला था, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि एवरीथिंग इन कंप्यूटर साइंस इज इन बिट्स, 0 और 1। तो मेमोरी का जो साइज है वो भी बिट्स में ही नापा जाता है। अभी मैं आपको वो MB GB का भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इसी के साथ में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, होता क्या है, बिट क्या है? 0 और 1। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है, ये पांचवी बिट है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, 10, 11, 12, 13। ये कितनी बिट्स हैं? ये 13 बिट्स हैं टोटल। ठीक है, कितनी बिट्स हैं ये? 13 बिट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर डेटा टाइप की, ठीक है, ये है 13 बिट्स, तो ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगी? आंसर है सिंपल, ये 13 बिट्स ऑक्यूपाई करेंगी। सिंपल, एकदम सिंपल आंसर है। कितनी बिट्स ऑक्यूपाई करेंगी? सॉरी, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगी? इट विल ऑक्यूपाई 13 बिट्स ऑफ मेमोरी। ऐसे ही बोलते हैं हम, कितनी बिट्स हैं? 13 बिट्स हैं, दे विल ऑक्यूपाई 13 बिट्स ऑफ मेमोरी। ऐसे ही इसको डिफाइन किया जाता है। आपकी कंप्यूटर साइंस में सारी मेमोरी बिट्स के टर्म में डिफाइंड होती है। ठीक है, सारी मेमोरी की जो बेस यूनिट है वो बिट्स है ना। जैसे जनरली स्पेस की यूनिट क्या होती है? कितना स्पेस है? लीटर्स में नाप सकते हो। जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर 200 लीटर्स कैपेसिटी है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आई मीन, है ना। तो आप इस तरह से स्पेस को नापते हो। या लेट्स से व्हेन वी कॉल एज कि टीवी कितना बड़ा है, तो यू कॉल इट लेट्स से 32 इंचेस, 42 इंचेस, 50 इंचेस, व्हाटएवर इट इज। तो ये क्या है? स्पेस की यूनिट है। सो सिमिलरली यहाँ मेमोरी की यूनिट क्या है? बिट्स है। ठीक है, हम बिट्स के टर्म्स में नापते हैं कि कोई भी जो वैल्यू है वो कितना स्पेस लेगी। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू कितना स्पेस ले रही है? दिस इज टेकिंग 13 बिट्स ऑफ स्पेस, क्योंकि इसमें कितनी बिट्स हैं? 13 बिट्स हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है पहली लाइन, all number types are stored as varying length field from 0 to 22 bytes in length। the question byte क्या होता है? तो 1 byte सिंपली समझिए, जैसे 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं, सबको पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड एज अ बाइट, यानी 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम एक बाइट कहते हैं। तो देखिए नंबर डेटा टाइप में क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर टाइप्स आर स्टोर्ड एज अ वेरिंग लेंथ फील्ड फ्रॉम 0 to 22 बाइट्स। यानी एक नंबर डेटा टाइप सिर्फ 22 बिट्स तक का नंबर स्टोर करा सकता है। सिर्फ 22 बिट्स तक का नंबर स्टोर करा सकता है। 22 बाइट्स तक का। तो व्हाट इज 22 बाइट्स? 22 बाइट्स इज इक्वल्स टू 22 बाइट्स इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आएगा? 8 2 16 और 1 कैरी गया, 176 176 एक्स। यानी ऐसे 10 के आप 176 लेंथ तक का लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी 1 कहीं पे भी 0, दैट डजंट मैटर। ठीक है, कहीं पे भी 1 हो सकता है, कहीं पे भी 0 हो सकता है, पर मैक्सिमम 176। अब आप कहोगे ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर। जब आप जाते हो इन लैबोरेटरीज ऑफ लेट्स से जैसे इसरो, नासा, इनमें आप जाते हो, वहां पे जो कैलकुलेशंस होती हैं रॉकेट से या स्पेस से रिलेटेड, तो उनमें इससे बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स होते हैं, राइट। इवन डेसिमल्स में जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्यूरेसी इन अ डेसिमल नंबर, ठीक है, तो अभी आप जनरल लाइफ में डेसिमल देखते हो अप टू 1 2 प्लेसेस, जैसे पॉइंट, जैसे 2.34, 2.45 या 2.456। बट जब हम बिल्कुल, क्योंकि वहां स्पेस से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है, या लेट्स से जो मेडिकल फील्ड में कैलकुलेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, राइट। दे आर वेरी वेरी प्रिसाइज इन नेचर। तो वो ऐसा नहीं कि आप उनको राउंड ऑफ कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, किसी की जान जा सकती है, राइट। तो वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इतनी बिट्स भी काफी नहीं होती हैं उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें उससे भी बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ती है। एंड दोस टाइप्स ऑफ नंबर्स आर स्टोर्ड एज बिग इंटीजर्स। उनको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? उनको हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ बिग इंटीजर्स। तो बस आपको बिग इंटीजर में यही याद रखना है कि दीज आर नंबर्स, ठीक है, दीज आर नंबर्स विच आर, इसकी मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉमन टाइप इन जावास्क्रिप्ट, ये बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है। दीज आर नंबर्स विच आर बिगर देन नंबर टाइप्स, ठीक है।
इसमें बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा। सिंबल इज समथिंग व्हिच वी विल सी इन स्लाइटली एडवांस पोर्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, आएंगे जरूर हम उस पे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इन जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्यों कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लेट्स से मुझे प्रियम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट्स हिज एज, व्हाट्स हिज एड्रेस, व्हाट्स हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स मुझे स्टोर करनी है। अगर मैं इस तरह से करने जाऊंगा ना, तो देखिए कितने सारे वेरिएबल्स लगेंगे। एक स्ट्रिंग में जाएगा प्रियम का नाम, नंबर में जाएगा मे बी हिज एज, ठीक है, बूलियन में जाएगा लेट्स से मे बी कि इफ ही इज फॉर एग्जांपल if he is over 25 years or not, or if he is over 18 years or not, whatever, I mean if he is a voter or not, ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हो सकता है वो, ठीक है। तो कितने सारे डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ेगा, करें जरा इसको। अगर मुझे करना है प्रियम का लेट्स से, तो आई विल टेक हिज नेम। नेम किस टाइप का होगा बताइए, सर नेम स्ट्रिंग, का स्ट्रिंग, करेक्ट। स्ट्रिंग सर, एज क्या होगी, नंबर सर नंबर, नंबर करेक्ट है ना। अच्छा, इज ही मैरिड और नॉट, ठीक है, या इज ही सिंगल और नॉट, बुलियन बूलियन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एक ही चीज होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है, फॉल्स, ये सर फॉल्स। ओके, व्हिच मींस यू आर नॉट सिंगल, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया यार, किस्मत वाले लोग। एनीवेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या था हमारा नेक्स्ट, और क्या था, एड्रेस। एड्रेस किस में आएगा, करेक्ट, स्ट्रिंग पे आएगा ये सर। स्ट्रिंग में आएगा। पिन कोड, पिन कोड किस में आएगा, नंबर, नंबर, राइट। अब एक प्रियम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे इतने वेरिएबल्स लेने पड़ रहे हैं, विच इज मतलब थोड़ा सा तो क्लटर्ड हो जाएगा ना। मान लीजिए ये तो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसके बाद लिखने बैठूं 5-6 और लोगों की इन्फॉर्मेशन, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस केस के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट ने आपको प्रोवाइड किया है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, जिसे पाइथन में हम डिक्शनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो रादर देन असाइनिंग 10 डिफरेंट वेरिएबल्स, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे असाइन करूंगा वेरिएबल student1, लेट्स से इसको मैं s1 बोल देता हूँ अभी के लिए, वेरिएबल s1 इक्वल्स टू, यहाँ मैं इसको दे देता हूँ नेम प्रियम, ठीक है। एंड अगेन प्रियम बीइंग अ स्ट्रिंग शुड बी रिटन इन डबल कोट्स, ठीक है। एज, प्रियम एज बताइए अपनी, सर 23, 23, ठीक है। इज सिंगल, नो, नो की जगह फॉल्स, बिकॉज वी आर यूजिंग अ बूलियन, नो ट्रू, नो और यस नहीं लिखते हैं, वी राइट ट्रू एंड फॉल्स। और क्या था, एड्रेस, आई विल नॉट आस्क हिज एड्रेस, यू कैन सिंपली टेल मी द सिटी नेम हियर, सर बालू, बालनगर, नहीं सर BAL UR GH80 जी, H80, बालूर Yes. घाट, ये सर। ओके, कहाँ पड़ता है ये, सर वेस्ट बंगाल, ओके। एंड देन आई टेक हिज पिन कोड एज वेल, सो पिन कोड बताइए, 733101 7, 33 हाँ 101। ठीक है। इज दिस डजंट इट लुक मोर मैनेजेबल, अब ज्यादा आसान है कि मुझे पता है कि S1 का नाम क्या है, S1 की एज क्या है, क्या S1 सिंगल है, तो फॉर्चुनेटली नॉट, ठीक है। देन एड्रेस क्या है, देन पिन कोड क्या है, आई कैन स्टोर अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल, लाइक क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, राइट, ऑक्यूपेशन क्या है, राइट, आई कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, दिस इज मोर मैनेजेबल। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप है, जहां पे हमारी दो चीजें होती हैं, वी हैव टू थिंग्स ओवर हियर, वन इज अ की एंड अनदर इज अ वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं की, क्या है ये, KEY की, I'll just give it a comment, ठीक है सर, key and then value, ठीक है। ये नेम इस केस में है की, और प्रियम इज द वैल्यू ऑफ दैट की, तो इसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये क्या है, की वैल्यू पेयर। सो हाउ डू, ये क्या है, दिस इज अ की वैल्यू पेयर, दिस इज अनदर की वैल्यू पेयर, दिस इज अनदर की वैल्यू पेयर। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ 0 or more की वैल्यू पेयर्स, वेयर कीज, जहां पे आपकी की जो होंगी वो हमेशा स्ट्रिंग होंगी। कैसी होंगी, स्ट्रिंग होंगी। की कभी भी आपकी ये नहीं हो सकती 12 की वैल्यू प्रियम है, नहीं, इट ऑलवेज हैज टू बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। सुनिए, इसको आप चाहें तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में करें, चाहें तो ना करें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर बीच में डैश आ गया, समथिंग लाइक दिस, जैसे अगर ये फर्स्ट नेम ही है इनका, तो मैं लिखता हूं अगर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए की के नाम में डैश आता है बीच में, इस तरह से डैश आ गया ना, तो इन केस ऑफ दिस यू नीड टू इनक्लोज इट इनसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमास। पर अगर डैश नहीं आता है, जैसे मैंने इसको नाम दिया सिंपली नेम, you don't need to write it in the inverted commas. This is not valid for all the strings. Strings तो आपको इसमें ही लिखनी है. Strings have to be written inside either single quotes or double quotes. That depends on your choice. And one thing I would suggest here is कि अगर single quote use कर रहे हैं तो single ही use करिए, और double use कर रहे हैं तो double ही use करिए. ऐसा क्यों होता है? We will get to that later. वो बात की बात है, ठीक है. But this is important to know, right? But जब strings को use करते हैं हम as key names, keys की तरह जब हम string को use करना शुरू करते हैं, जैसे name, age, is single, address, pin code, ठीक है, जब इस तरह की चीजें हम यूज करना शुरू करते हैं, तो जब तक इसमें बीच में डैश नहीं आ रहा या हाइफन नहीं आ रहा, हाइफन और डैश आर बोथ आर सेम थिंग, यू डोंट नीड टू इनक्लोज देम इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। यू डेफिनेटली कैन, ऐसा नहीं है कि ये गलत हो गया, नहीं, दिस इज आल्सो फाइन, दिस इज आल्सो फाइन, दिस इज फाइन,
राइट, ये भी ठीक है, बट यू डोंट नीड टू, इसकी जरूरत नहीं है, राइट, समझ में आया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई ऑब्जेक्ट में आपकी कोई भी की वैल्यू पेयर ना हो, तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज नथिंग बट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? है ना? Yes, sir. सो दीज वर योर बेसिक टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। हम अभी इसमें और डिटेल में जाएंगे, बट अभी के लिए आई विल स्टॉप हियर विद द टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, बिकॉज इसके बाद आई हैव टू कंटिन्यू द ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स बताने के लिए ये बताना जरूरी था, है ना? तो एक बार थोड़ा सा टाइम लीजिए, इट्स 9:20, 5 मिनट लीजिए, इसको रिवाइज करिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट थिंग्स विच इज ऑपरेटर्स, ठीक है? तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज कि अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पूछनी थी कि कल आप लोगों की क्लास किस टाइम पे रखूँ मैं? कल रात में फेस्टिवल है, तो मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम एट नाइट एज वेल। मैं मतलब मैं कल नहीं सेलिब्रेट करता हूँ, तो आप लोग मुझे बता दो कि कल की क्लास किस टाइम पे रखनी है। मॉर्निंग? मॉर्निंग मैं रख सकता हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर्टिकुलरली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब 8 बजे तक क्लास खत्म हो जाए तो अच्छा है कल का, ठीक है? 8 बजे तक इफ इट गेट्स ओवर, दैट इज व्हाट आई वांट, बट मतलब अगेन इट्स योर क्लास, सो इट्स योर कॉल, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा बीच में। कितने लोग आर रेडी फॉर मॉर्निंग? प्लीज रेज हैंड्स। मॉर्निंग में कितने लोग चाह रहे हैं? टाइमिंग्स हम करते हैं डिसाइड, बट मॉर्निंग में कितने लोग रेडी हैं? सर इवनिंग 3 बजे रखो ना सर। हाँ, मतलब 5 मॉर्निंग में बोल रहा हूँ, सुबह 12 से 5 का समय, शाम को 5 तक का समय, उसको आई एम कॉलिंग एज मॉर्निंग, ठीक है? मतलब डे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। 12 से 5 तक क्लास रखने के लिए कितने लोग रेडी हैं? 21 पीपल आर रेडी। फिर बाकी लोगों को दिक्कत होगी, बाकी लोग रेडी नहीं है। कितने लोग शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं अटेंड क्लास? मतलब 5 बजे मैं एंड कर दूंगा क्लास, 3 बजे स्टार्ट करके, क्योंकि होली है, तो मतलब आपके घरों में भी प्रिपरेशन वगैरह होंगी, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। 3 o'clock ही ठीक रहेगा सर। हाँ, 3 बजे ही ठीक रहेंगे सर। मुझे भी ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है 3 बजे। 3 बजे रख लें सब लोग, किसी को कोई दिक्कत 3 बजे की टाइमिंग में? आपकी डाउट क्लास कितने बजे से कल? लेट मी सी। 12 12 बजे है सर। 12 से 1 है ना? हाँ, तो ठीक है, 12 से 1 डाउट क्लास कर लेंगे। डाउट क्लास में कल आ जाइएगा तो थोड़ी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आप लोग गायब हो जाते हो डाउट क्लासेस में, ठीक है? तो 12 से 1 ये है, 3 से मैं संदीप को बोल दूंगा, फिर 3 से 5 के लिए। 3 से 5 में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज रेज हैंड्स, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। कल सर 2 संडे से है वैसे 4 भी। हाँ, क्या चीज़ क्या चीज़? या सर 2 से 4 बजे तक अगर रखें तो? ये सर 2 to 4 कर लीजिए। अच्छा, कितने लोगों को 2 से 4 में कोई दिक्कत है? वो लोग हैंड रेज करिए प्लीज। प्रॉब्लम इन 2 to 4? सर 2:30 बजे कर दो सर कम से कम, नहीं तो फिर अरे अब बहुत मैं मुश्किल। कितनी लोगों की सुनूं? कोई 2 कह रहा है, कोई 2.5 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। नहीं सर देखो 3 बजे मेरा सफिशिएंट होगा, लेकिन मैम बोल रही हो तो मैं बोल रही हूँ तो 3 बजे की जगह मैं 2:30 बजे कर दो। कुछ भी करूंगा तो मैं 2:30 बजे तक ही मेरा क्लियर हो पाएगा। हेलो हेलो, सर, 2 से रख दीजिएगा। अच्छा, बड़ी दुविधा है, क्या करें? वही काम टाइम कर है सकते हैं सर। सर, 3 बजे वैसे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मंतशा चलेगा आपको 3 बजे? ओके सर। चलिए ठीक है, तो कल 3 से 5, ठीक है? मैं टाइम अपडेट सर करवा दूंगा। सर सर हाँ जी। 2 से 4 कर दीजिएगा। अरे मुझे पता है, मैं अगली बार से नहीं पूछने वाला हूँ, मैं अपनी मर्जी से टाइम बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि जितने लोगों से पूछो उतने लोग अपने हिसाब से टाइम बताते हैं। सर एक्चुअली क्या सर, मैं मतलब जॉब पे जाता हूँ तो सर मुझे वो कल भी बुलाया था वहाँ पे। तो कल तो संडे है, सर कल भी बुलाया उन्होंने। बताओ। ठीक है, एक टाइम मैं फाइनल कर रहा हूँ, 2:30 to 4:30, इस पे आप कोई डिस्कशन नहीं होगा, 2:30 to 4:30 ठीक है सर। ठीक है? जितनी क्लास जिसकी छूट जाएगा लास्ट में, तो वो एक काम करिएगा, जितनी जिसकी लास्ट में छूट जाए वो अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है? तो बस ये कल ही कल के लिए है, बाकी तो कल 2:30 to 4:30 इसको खत्म करते हैं। मेरे खाने के लिए भी आप लोगों ने 1.5 घंटे का ही टाइम छोड़ा, कोई नहीं, 4:30 पे मैं फ्री हो जाऊंगा, तो उसके सर बाद हमने तो खाया ही नहीं है। हम बनाएंगे अब। है। हम तो बनाएंगे अब खाना, सर क्लास खत्म हो जाए तो खाना बनाऊंगा अब। मैं कल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, अब आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मैं संदीप को 2:30 to 4:30 का टाइम बोल देता हूँ। हाँ, कल उसी टाइम पे मिलेंगे, ना 2 ना 3, बीच में।
टुडे वो एंड नॉट, ठीक है, एंड Not. और नॉट वाज कौन से ऑपरेटर्स देखे थे कल? लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट, व्हिच वर एंड और एंड नॉट, ठीक है, एंड Not. और नॉट, तीन देखे थे हमने। तो वील कंटिन्यू विद द ऑपरेटर्स टुडे एंड आज मैं आपको उसे एक्शन में दिखाता हूँ। तो मैंने बताया था आपको कि एंड और नॉट किस पे काम करते हैं, दे वर्क ऑन बिट्स, या फिर बिट्स आर वेरी मच सिमिलर टू बूलियन वैल्यूज। तो हम दो बूलियन वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, और जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। और बाकी अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आप ऐसे कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। बी ले लिया मैंने ट्रू। console.log, ठीक है, console.log आपका प्रिंट स्टेटमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट होता है ना। तो console.log लिखा मैंने और a एंड b, ठीक है। साहिल रिजल्ट क्या आएगा a एंड b का? साहिल देयर, यस सर। रिजल्ट क्या आएगा a एंड b का? हाँ, चलिए और किसी से पूछते हैं। आदर्श आप हैं क्लास में? ओके, लेट्स सी। नहीं, नॉट यू विवेक। यार एक तो ये छिपा दो यार कोई। लेट्स सी हुज देयर। महेश आप बताइए। महेश देयर इन द क्लास? यस सर, यस सर। हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं क्या? मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मेरी जान हो गया। ए में फॉल्स है और बी में मैंने ट्रू स्टोर कराया है। ए एंड बी का रिजल्ट क्या आना चाहिए? एंड ऑपरेटर जो हमने कल पढ़ा था। सर फॉल्स। क्यों? सर ए की वैल्यू वो फॉल्स है, मतलब 0 कंसीडर करेगा और बी की 1। रिजल्ट आया फॉल्स। अगर False. इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ और से, तो रिजल्ट क्या आएगा? सर ट्रू आएगा। क्यों? सर ट्रू में दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू ही आता है। ठीक है, साहिल आपका टर्न। नॉट ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 या ट्रू? ट्रू बोलना चाहिए है ना, जब हम फॉल्स ट्रू में डील कर रहे हैं। आपने सही बोला है, बस आपको बोलना है ट्रू, ठीक है। सो देखिए ट्रू आ गई, राइट। तो ये थे वो तीनों ऑपरेटर्स जो कल हमने पढ़े, और ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें ए है, सॉरी नॉट है, या ये जो निगेशन ऑपरेटर है, दिस इज माय दिस इज माय यूनरी ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि ये देखिए सिर्फ एक वेरिएबल, और इस केस में वेरिएबल को कहते हैं ऑपरेंड, ठीक है। तो दो टर्म्स होते हैं, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर वो है ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेटर्स ये हो गए आपके प्लस माइनस एंड और नॉट, ये सब क्या हो गए? ऑपरेटर। एंड द वेरिएबल्स ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो नॉट परफॉर्म करता है सिर्फ एक ऑपरेंड पे, तो नॉट इज अ यूनरी
ऑपरेटर है, यूनरी है या बाइनरी है? अरिथमेटिक बाइनरी है, बाइनरी है, करेक्ट। माइनस कैसा है? बाइनरी, मल्टीप्लाई, बाइनरी, डिवाइड, बाइनरी, बाइनरी, पावर ऑफ ऑपरेटर, रेज टू द पावर ऑफ, जिसको हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। वही बाइनरी, x रेज टू द पावर y, दो वेरिएबल्स तो चाहिए ना, बाइनरी, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, बट जनरली द प्रॉपर टर्म इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पहले हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें थे एंड रिप्रेजेंटेड बाय एंड, और represented by or, not represented by exclamation. Next set of operators is arithmetic operators, which are used to perform arithmetic operations. They are plus, अब मैं ये प्लस माइनस नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये आते हैं, ठीक है। एंड एक ऑपरेटर और आता है जो है मॉड्यूलो या मॉड्यूलाई ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलो बोलते हैं जनरली। मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको क्या करता है जनरली, क्वोशिएंट, जैसे डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है, बट मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं यहाँ लेता हूँ 10 और यहाँ पे मैंने लिया लेट्स से 2, ठीक है, तो a डिवाइड बाय b का रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? 5, करेक्ट। 5 आएगा। पर अगर मैं लूंगा मॉड्यूलो तो रिमाइंडर कितना बचेगा इस केस में? 0, करेक्ट। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये एक नया ऑपरेटर है आपके लिए, जो लोग भी कंप्यूटर साइंस पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न्स यू द रिमाइंडर। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा एक्सपोनेंट ऑपरेटर, व्हिच इज आल्सो रिटन एज डबल स्टार। स्टार क्या था, मल्टीप्लिकेशन, और डबल स्टार है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल a रेज टू द पावर b, ठीक है, लेट्स सी द रिजल्ट। 10 टू द पावर 2 कितना होगा, 100, राइट। सो दिस इज योर एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इसको हम एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर फॉर इजी। नेक्स्ट आते हैं आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो देखिए अगर लिखा हुआ है a प्लस प्लस, ठीक है, या a माइनस माइनस, या ये भी लिखा हो सकता है प्लस प्लस a या माइनस माइनस a, ये होते हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यूनरी ऑपरेटर्स। इन द एंटायर क्लास ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दीज टू आर द ओनली वंस व्हिच आर यूनरी ऑपरेटर, जो यूनरी हैं, यानी सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए प्लस प्लस का मतलब होता है +1 एंड माइनस माइनस का मतलब होता है -1। बात समझ में आ रही है? प्लस प्लस का मतलब होता है +1 एंड माइनस माइनस का मतलब होता है -1, और ये दोनों एक ऑपरेटर के आगे, या सॉरी, दे कैन बी यूज्ड आइदर इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर और आफ्टर द ऑपरेटर। जैसे इन दिस केस इट इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर लाइक दिस, right? It is used in front of the operator, यानी before the operator, or it can also be used after the operator. So where they are placed, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। Now let me show you this. माइनस माइनस का क्या मतलब है प्रियम? सर -1, -1, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? सर -5। -5 क्यों आएगी? 10 - 1 9 नहीं होगा? सर बी वेरिएबल तो 2 दिया हुआ है। b तो मैंने यूज ही नहीं किया। ओह अच्छा, सॉरी, हाँ। ये सिंगल ऑपरेटर पे काम करता है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो वैल्यू आएगी 9, सही है। बट अब जादू दिखाऊं? कोई जादू नहीं है, आई वाज जस्ट एग्जैजरेटिंग। अगर मैं इसी को करता हूं a माइनस माइनस, आपको वैल्यू फिर भी मिलेगी 10। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन a माइनस माइनस एंड माइनस माइनस। तो द डिफरेंस बिटवीन a माइनस माइनस, इस केस में आपका ऑपरेटर बाद में आ रहा है। बाद को इंग्लिश में हम पोस्ट कहते हैं, ठीक है, या आफ्टर कहते हैं, वी कॉल इट आफ्टर और पोस्ट, राइट। बाद, द वर्ड बाद इन हिंदी इज टर्म्ड एज पोस्ट और आफ्टर इन इंग्लिश। सो दैट इज व्हाई दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज योर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, राइट। दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, वेयर एज पहले को हम इंग्लिश में बिफोर या प्री कहते हैं। So this operator is called as prefix operator, and there is a difference in the usage of prefix and the postfix operators. Now let's see the difference between them. देखिए prefix operator क्या कहता है, such as this minus minus a और plus plus a. Prefix operator क्या कहता है, ठीक है, prefix operator ये कहता है कि first operate then use, ठीक है, you can note it down if you want. Prefix says first operate and then use. पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, यानी कि पहले -1 कर लो और फिर यूज करो उस वेरिएबल को, राइट। तो देखिए इसने पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर यूज किया, वैल्यू आई 9 बिकॉज माइनस माइनस ने कर दिया उसको -1, एंड देन ए का हमने यूज क्या किया, कुछ नहीं किया, प्रिंट किया है। console.log इज अ प्रिंट स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग, console.log इज अ प्रिंट स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी सिंपली डिड console.log माइनस ए मतलब पहले -1 एंड देन प्रिंट ए। वेयर एज पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्या कहते हैं कि पहले यूज कर लो एंड देन ऑपरेट, फर्स्ट यूज देन ऑपरेट, वो निर्मा वाला पहले इस्तेमाल करने वाला है ना। सो पोस्टफिक्स सेज फर्स्ट यूज देन ऑपरेट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, वैल्यू आपको 10 ही दिखेगी, क्योंकि पहले ए प्रिंट हो गया और उसके बाद में ए की वैल्यू डिक्रीमेंट करी गई। समझ में आ रही है बात सबको? एवरीबॉडी गेटिंग दिस थिंग? यस सर। है ना, राइट। सो हमने क्या क्या कैटेगरीज देखी, हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और क्या है, हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, जबकि नॉट क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी है। देन हमने देखे लॉजिकल ऑपरेटर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड एक्सपोनेंट्स, ये सारे हमारे हैं बाइनरी ऑपरेटर, वेयर एज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर योर यूनरी ऑपरेटर, ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, ठीक है। जबकि
एंड एट द सेम टाइम दे कैन बिहेव बोथ एज अ पोस्टफिक्स एंड अ प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो आपको पोस्टफिक्स प्रीफिक्स भी आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सो दीज आर द टू सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो कि हम यूज में लेते हैं। आई बात समझ में सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं, ये सब डिलीट करके, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ और सिर्फ वही रिप्लाई करेगा, ठीक है। मैं इसको भेज रहा हूँ, चलिए चैट में नहीं भेजते हैं, यहीं पे ही ऐसे में देख के पूछ लेता हूँ। नंदू बताइए इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की? हेलो सर। हाँ जी नंदू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? सर एक हो जाएगा 13 सर। 13 मैंने माइनस माइनस यूज किया है, प्लस माइनस प्लस बची सर एक 9 11 सर। ठीक है। रश्मि, व्हाट डू यू थिंक विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? I think 1. 1. Why? How so? 12. 12. Okay. Yeah. And Sahil, what do you think? 12. नंदू, ये लोग तो 12 कह रहे हैं, आप 11 कह रहे हो, ऐसा क्यों? सर 12 ही होगा सर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। पोस्टफिक्स ऑपरेटर है तो माइनस माइनस तो होगी एक ही वैल्यू, पर बाद में, यानी कि जो b का एडिशन होगा वो 10 में होगा ना कि 9 में, है ना। लेट्स सी, है ना। यहीं पे अगर अब मैं a को प्रिंट करूंगा तो अब क्या a प्रिंट होगा नंदू बताइए? 10 या 9? सर अभी इसके बाद अगर पहले से ऑपरेट हो जाता है, माइनस ऑपरेट हो चुका है? नहीं सर इसमें तो नहीं, इसमें 10 ही ऑपरेट होगा सर, सिर्फ 10 ही आएगा। यहाँ पे तो आपने 10 को 9 कर दिया ना, तो यहाँ पे 10 क्यों हो जाएगा? अच्छा सर हम सोच रहे सर कि सेपरेट ही हुआ ना सर, क्योंकि वहाँ पर माइनस माइनस पहले इसके साथ में ऐड हो गया ना। आपने a माइनस माइनस किया, यानी आपने कहा कि b में तो 10 ऐड करो, लेकिन a को भी माइनस माइनस कर दो, यानी a को 10 से 9 कर दो। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे इसको प्रिंट करेंगे तो 9 ही प्रिंट होगा ना। जी सर। ठीक है, चलो और थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कम से कम। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही रिप्लाई करेगा। आयुष, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a मॉड्यूलो b? 1. करेक्ट, राइट, द रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, तो तालिब, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a डिवाइड बाय b? ओके, किसी और से पूछते हैं। तो रियम आप बताइए रिजल्ट ऑफ a डिवाइड बाय b। सर 5. 5.5 होगा ना? 5.5 ओके यस। हाँ 1 का पॉइंट में 0 आएगा ये सर। ठीक है, चलो अच्छा। नाउ टेल मी नंदू, आपसे एक क्वेश्चन, आप रिप्लाई करोगे। a डिवाइडेड बाय माइनस माइनस b, रिजल्ट क्या आएगा? a डिवाइडेड बाय माइनस माइनस b। माइनस माइनस पहले है सर। आपके 11 ही आएगा। स्क्रीन देख लीजिए, 11 11 ही आएगा। करेक्ट। और अगर मैंने b माइनस माइनस किया होता तब? b माइनस माइनस किया होता तो 5.5 आता सर। करेक्ट, राइट। सबको समझ में आया ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सारा डिस्कशन सबको समझ में आया? जी सर। Yes, sir. नाइस, ठीक है। तो दीज वर द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अगले कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स पे बढ़ते हैं, व्हिच इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उससे पहले कुछ रह तो नहीं गया? स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बाद में बताऊंगा, स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी अलग से। ओके ठीक है, लेट्स डायरेक्टली कम टू रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और बाय द वे, अगर आपको, चलिए एक में शॉर्ट हैंड और नोटेशन और बता देता हूँ। अगर मैंने लिखा a = a + 10, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ मैं console.log मतलब प्रिंट console.log a, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? मंतशा बताइए। Sir, 21. करेक्ट, ठीक है। इसी चीज को इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर लॉन्ग टर्म थिंग। अगर आपको इसी चीज को शॉर्ट में लिखना है तो आप इसको लिखेंगे a + = 10। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सेम है एज, लेट मी राइट इट डाउन इन कमेंट, दिस इज सेम एज a = a + 10। और ये आप किसी भी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो, किसी भी बाइनरी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको a - 10 करना होता तो यहाँ पे हो जाता a - = 10। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो a × 10। इसका मतलब क्या है? a = a × 10, है ना। ये सर। तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट हैंड ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेशन बोलते हैं, या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी बोलना बोल सकते हो, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे, व्हिच इज कंपैरेटिव या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। व्हिच इज कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारे वाले ऑपरेटर्स। सो ग्रेटर देन, इक्वल टू, बराबर है या नहीं, ठीक है। एंड दिस इज, इसमें बस एक ही जगह कहानी इंटरेस्टिंग होगी, वो मैं बताता हूं आपको कि कहां होगी। ओके ठीक है। ये किस टाइप की वैल्यू है? ए में किस टाइप की वैल्यू है? तो ये आप बताइए। सर नंबर वैल्यू है। राइट, और ये? तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है। राइट, ए एक नंबर है, बी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखता हूं console.log a = b, देखिए सबसे पहले मैं आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ा रहा हूं रिलेशनल ऑपरेटर्स में, क्योंकि यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इसका। इसके बाद तो जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड सबसे पहले डील कर लेते हैं। a = b, प्रियम आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका? सर डबल इक्वल्स टू मींस ये टाइप को जज नहीं करेगा। तो अच्छा ठीक है, आपको वो लॉजिक पता है, आपसे नहीं किसी ऐसे से पूछते हैं जिसको इसका लॉजिक ना पता हो।
ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस कि जिसने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। नंदू आप बताइए। क्या सर? इसका रिजल्ट क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का जो मैंने यहाँ लिखा? ए में एक नंबर है 10, बी में एक स्ट्रिंग है 10, ठीक है। ए इक्वल टू बी का रिजल्ट क्या आएगा? एक और हाँ, ट्रू या फॉल्स, मतलब क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? कंपेयर करता है। फॉल्स हो जाएगा सर। फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि सर एक वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग है सर, तो दोनों तो कंपेयर हो दोनों नहीं ही सकते। वेरिएबल्स हैं, दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है। एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, आपको ये कहना चाहिए। जी सर, एक नंबर एक स्ट्रिंग है। बट रिजल्ट आता है ट्रू इस केस में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ रिजल्ट ट्रू क्यों आया। रिजल्ट ट्रू इसलिए आया क्योंकि जब आप डबल इक्वल से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उस केस में ये आपका जो टाइप है या वैल्यू टाइप है उसको इग्नोर कर देता है और सिर्फ कंटेंट को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे कंटेंट क्या है? कंटेंट तो 10 ही है ना, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को फोर्सिबली नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इस स्ट्रिंग को फोर्सिबली नंबर में कन्वर्ट कर देगा और तब उन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगा, और नंबर्स तो इक्वल हैं ही, राइट। बट अगर इसी की जगह पे मैं लिखूंगा a ट्रिपल इक्वल्स टू b, द रिजल्ट विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रिपल इक्वल से कंपैरिजन करते हैं उस केस में अगर दोनों का टाइप अलग है, जैसे यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो कोई भी कन्वर्जन टेक प्लेस नहीं करता है, नो कन्वर्जन टेक्स प्लेस एंड द वैल्यूज आर कंपेयर्ड डायरेक्टली। तो नंबर इक्वल स्ट्रिंग, नो, द रिजल्ट इज फॉल्स, राइट। तो द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू इज कि डबल इक्वल टू में वो वैल्यू को रिगार्ड नहीं करता, यानी कि भले ही ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, डबल इक्वल टू की बात कर रहा हूं मैं, भले ही एक स्ट्रिंग है पर ये एक नंबर है, पर सिंस दोनों का कंटेंट सेम है, ठीक है, तो वो उनके टाइप्स को क्या करेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, या तो नंबर को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को नंबर में, अभी मुझे याद नहीं है कि किसको किसमें करता है, टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। और कंपेयर करेगा क्या दोनों का कंटेंट इक्वल है, हाँ इक्वल है, रिजल्ट दे देगा ट्रू। बट ट्रिपल इक्वल कहता है कि नहीं, सबसे पहले वो टाइप चेक करता है, अरे यहाँ पे नंबर है, इट इज अ नंबर, इट इज अ स्ट्रिंग, इट कैन नॉट बी इक्वल एट एनी केस, इन एनी केस, राइट। सो कंसीडर दिस एज अ रूल ऑफ थंब फ्रॉम टुडे, इसे आज से आप अपने पत्थर की लकीर मान लीजिए, कभी भी आप डबल इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे कंपैरिजन के। डबल इक्वल टू ऑल्दो इट इज नॉट अ फ्लॉ इन जावास्क्रिप्ट, वो बना ही उस पर्पस के लिए है, बट प्रैक्टिकल में या रियल टाइम सिनेरियोज में ऑलमोस्ट कभी यूज नहीं होता। तो मेक इट अ रूल, कोई भी आज से कभी भी डबल इक्वल यूज नहीं करेगा। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग, 2 मिनट की कहानी है। एक बार एक डेवलपर ने मेरी ही कंपनी में गलती करी थी, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू। पता है क्या हुआ था? हमारा सारा बिजनेस 3 मिनट के लिए डाउन हो गया और कंपनी को 4.5 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। पता है, क्योंकि जो डेटा आ रहा था उसका हम वेरिफिकेशन कर रहे थे और उस वेरिफिकेशन में डेटा आया गलती से स्ट्रिंग, और हमने उसे नंबर के फॉर्म में डिस्प्ले करने की कोशिश की, डिस्प्ले क्या, कंपेयर करने की कोशिश की अपने बैकएंड पे, और उसकी वजह से हुआ क्या, ये बहुत अर्ली स्टेज की बात है, ये मैं आपको 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब कंपनी नई नई बनी थी, तो ये सारे रूल्स चेक में नहीं थे। अब तो रूल्स आते हैं, मतलब लिंटिंग रूल्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको ये बता देंगे कि आपको डबल इक्वल टू यूज ही नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लिंटिंग रूल्स बन चुके हैं आज की डेट में, तो हम उनका यूज करते हैं। बट उस टाइम पे वो रूल इन प्लेस नहीं था। हुआ क्या कि एक बिहाइंड द सीन्स कंपैरिजन हुआ, उसने रिजल्ट 2 दे दिया, और जो सीपीयू एक्सपेक्ट कर रहा था उसे मिला नहीं, सीपीयू डाउन हो गया पूरा का पूरा। कुछ ऐसा, अभी पूरा सिनेरियो में समझाने में बहुत टाइम लगेगा तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, बट आप ऐसा समझिए कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया, 3 मिनट के लिए पोस्टमैन डाउन हो गया, और 4.5 करोड़ से ऊपर का लॉस हमने झेला था उन 3 मिनटों में, ठीक है। तो मेक इट अ रूल ऑफ थंब कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में डील कर रहे हैं आप डबल इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे फॉर कंपैरिजंस, ठीक है, ये रूल बना लीजिए अपने दिमाग में। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस यस सर। यस, ठीक है। दिस इज नथिंग जो मैं नहीं बता सकता हूं आपको, बिकॉज दिस हैज बीन पब्लिश्ड, इस चीज को पब्लिश किया गया है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला कंपैरिजन ऑपरेटर देखें, अगला कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट जैसे इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू चेक करता है कि क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इज ए नॉट इक्वल टू बी, क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स? कोई भी बोल सकता है, एनीवन कैन स्पीक अप। फॉल्स सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, डेफिनेटली ट्रू आएगा। True, ट्रू sir. क्यों आएगा? बिकॉज डेफिनेटली ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज अ नंबर, बी इज अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट इक्वल। बट अगर मैं सिंगल इक्वल का यूज करता हूं तो ये रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाता है, सिमिलर टू इक्वल इक्वल। समझ में आ रही है बात? तो जैसे डबल इक्वल टू कभी नहीं यूज करना है, वैसे ही आपको नॉट में सिंगल इक्वल टू कभी नहीं यूज करना है। आप ऐसे सिंपल समझिए कि आपके सिंगल इक्वल टू को मैंने रिप्लेस कर दिया है नॉट से, तो अब वो नॉट का चेक लगा रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है, आर दे टू नॉट इक्वल, यस दे टू आर नॉट इक्वल, द रिजल्ट विल बी ट्रू, राइट, द रिजल्ट विल बी ट्रू। आ रही है बात समझ में? सर वहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा के देखिए ना। नहीं, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू नहीं यूज होता, दैट इज एन इनवैलिड केस, ठीक है। कंपैरेटिव या रिलेशनल ऑपरेटर्स कल मैं कंटिन्यू करूंगा आपकी क्लास में 2:30 बजे, आज के लिए बिकॉज इट्स टाइम, तो आई एंड द क्लास हियर, बट वी विल कंटिन्यू विद द कंपैरिजन ऑपरेटर्स टुमारो। कुछ ज्यादा बचा नहीं है इनमें बताने को, ठीक है, 2-3-5 मिनट लगेंगे मुझे, टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका कल, ठीक है, तो बट कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, इट्स टाइम नाउ, और कल ऑपरेटर्स कंटिन्यू करेंगे, एंड अगर ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं तो आई विल टीच यू दिस थिंग, कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स।